Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. I hope you all are doing great. I wish you all the success. Today the topic that I've got for you is the federal system. इसमें हम फेडरल फीचर्स देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के और यूनिटरी फीचर्स आई विल कवर बट बिफोर कवरिंग दीज फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर्स लेट मी explain you certain basic things about the federal system, like what is federal system and why India adopted federal system, and is it there in the constitution, the word is mentioned or not. So isko karne ke baad then I'll explain this to you, the federal features and unitary features of the constitution. So let's begin. So federal system kya hota hai? Jo federal system is like we don't the country is not governed from one place. The country has been divided into different parts for the convenience of governance, and then every part is sovereign in itself, but at the same time it's working under the union, or you can say the constitution is the authority, but it has equally given power to all the system, but there is some unitary superiority is also there. So that is the federal system. Now, why India adopted federal system? So the federal system was adopted by the constitution makers mainly due to two reasons: the large size of the country and the socio-cultural diversity. We all know India is a vast country, not just geographically तो vast है ही, but it is also socio-culturally very diverse country. Every 50 kilometers you will see a change in language and cuisine and taste and how people conduct themselves. Their socio-cultural the roots are different. तो ये जो रीज़न था ना, तो हम ऐसी for these reasons we could not have adopted a unitary features. सेंटर पे एक यूनिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट बिठा दी and it is governing the entire country. That would not have been possible for India. फिर तो dissent होता, fights, riots, all these things would have been very normal things, because one person or one person sitting in the center cannot know, or a group of people cannot understand the diversity and make laws and rules and to rule every kind of people. Everybody cannot be fit into one box. So that was the reason India adopted federal system of the governance. Now, is the term federation is the term federation anywhere in the constitution? The answer is clearly no. The federation term is not there in the constitution anywhere. Okay, so in the constitution it is mentioned as India is a union of states. India, that is Bharat, is a union of states. तो फेडरेशन वर्ड इज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर प्रीलिम्स में इस तरह कभी ट्रिकी क्वेश्चन में दे देते हैं तो यू विल हैव टू बी केयरफुल. एंड देन इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. We say India is not federal, there is no mention of federation in the constitution. Then what is mentioned? India is a union of states. Why do we call India as a union of states? We call India as a union of states because Indian Federation is not a result of an agreement among the states like American Federation. तो अमेरिका तो फेडरल कंट्री है, वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं they have agreed, they have come together to form a union, then that is why it is called United States of America. But India में ऐसा केस नहीं है. ऐसे different parts they did not come to make a country which is called India. No, India है, फिर उसको हमने divide किया. It's not vice versa. Then it has been divided for governance convenience into different states. That is why Indian Federation is not a result of an agreement among the states like American Federation. फिर second, the states have no right to secede from the federation. अब इंडिया जैसे अमेरिका में क्या है ना, अमेरिका में जो states हैं उनको right है कि वो अमेरिका से बाहर हो सकते हैं.
they will not be America, they can become an independent state. But इंडिया में किसी भी स्टेट के पास वो ये नहीं बोल सकता कि अब मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए या आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंडिया, आई वांट टू बी डिफरेंट स्टेट्स, वी डो नॉट वांट टू बी इन इंडियन government or India as a country, Indian Federation anymore. No, this option is not there. Because why? Because we are a union of states, we are not the result of agreement. So Indian Federation you must remember is based on Canadian model. ये prelims में आपसे पूछ सकता है. तो Indian Federation किस पे based है? Generally जब न्यूज़पेपर्स आप लोग पढ़ते हैं इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, तो हमारा क्या आता है, जब भी टू लीडर्स मिलते हैं तो इंडियन अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी एंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स, जार्गन्स आर देयर. बट आपको जब प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको अमेरिका माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा. बट नो, इंडियन फेडरेशन जो बेस्ड है वो कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है. दैट यू हैव टू रिमेंबर, नॉट द अमेरिकन मॉडल. ऑलराइट, नाउ लेट अस सी the features. What are the federal features of the constitution and what are the unitary features of the constitution? जो features हम देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कैसे, किसकी वजह से हम इसको फेडरेशन बोलते हैं, किसकी वजह से हम इसको यूनियन बोलते हैं. तो let's see. The federal features of the constitution are dual polity. What is dual polity? The dual polity is center of the political structure at the center and state, each with their own sovereign executive power. देखिए नोट्स में आपको इतना ही लिखना है. It will be easy to. dual polity क्या है? सेंटर स्टेट भी होगी और दोनों को अपना sovereign executive and executive power है. ये चीज़ आपको नोट्स में ऐसे लिखिए, to remember it, to revise it quickly and easily. And now what you have to do, अब इसमें कुछ बचा नहीं है. अब बचा गया है, जब आपको आंसर लिखना है तो यू जस्ट हैव टू एक्सपैंड दिस एंड गिव एग्जांपल. दैट्स इट, इट्स डन. द सेकंड पॉइंट ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल फीचर्स है वो ये है, दैट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डज दैट मीन? When the constitution is written, it clearly specifies the structure, power, function, organization of the center and states, अवॉइडिंग डिसअग्रीमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. अगर ये लिखा ही नहीं होता, देखिए हमारे यहाँ तो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, फेडरल सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली रिटन हुए हैं, फिर भी क्या होता है, द इंक्रोचमेंट on each other's areas, not each other कह सकते हैं. generally what happens, the center encroaches on the states' rights. तो कभी through the governor we are seeing every day, almost every day in the newspaper, some or the other states the governors are like sitting on the bills, they're not signing or approving or disapproving the bills sent to them by the assembly. तो क्या होता है, तो encroachment हो रहा है somewhere. Despite being written constitution, despite being many judgments by the Supreme Court, they are in the tussle because of different parties or ideologies. They are tussle. Their main focus is not on the governance, collective governance of the state. लोगों का भला हो, but आपस में ego tussle कि इनका है तो हम नहीं पास करेंगे because there is a opposition. सो ये चीज़ें डिस्पाइट बीइंग रिटन हो रही है. अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता फिर तो आप सोच रहे हो, फिर एक एक छोटी छोटी चीज़ें भी दिस वुड हैव बीन सिटिंग इन द कोर्ट, और वो कोई कंट्री तो हमारी इस तरह से गवर्न ही नहीं हो पाती. द वे वी बिहेव, द वे आवर पॉलिटिकल क्लास बिहेव्स, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. तो जब रिटन कर दिया तो एक फेडरल फीचर हो गया ये कॉन्स्टिट्यूशन का. दिस वेरी क्लियरली नाउ इट इज़ द गवर्नमेंट लाइक they know their limits. They will have to abide by their the limits specified in the constitution. Now the next is division of powers. Division of powers का क्या है, जो 3 list है ना, let me know in the comment section. Pause it and write in the comment section what are the 3 list. So division of the power is 3 list, which is जो यूनियन गवर्नमेंट की लिस्ट है, फिर स्टेट की लिस्ट है एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. इन तीनों में है कि क्या यूनियन, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे एक्सक्लूसिवली, कौन से सब्जेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जिस पे लॉज बनाएगा एक्सक्लूसिवली. एंड देन देयर इज अ कॉन्करेंट list in which both the state and center can make the laws, but the laws made by the center will prevail over the state. This is the division. The power is
clearly divided, very clearly it's divided between the center and the states. So ये भी एक फेडरल फीचर है, ऐसा वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. देयर इज नो एनक्रोचमेंट, कैन नॉट बी डन. सो इट्स अ फेडरल फीचर. अदरवाइज फिर एक ही दे देता, ये लिस्ट है और ये यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, यूनिटरी फीचर हो जाता ना फिर. And then supremacy of the constitution. What is supremacy of the constitution? Laws enacted by the center and state must conform to its provision, right? That is the constitution is supreme. आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते हैं, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई करें. उसकी कॉन्सोनेंस में उसके उसके प्रोविजंस को कॉन्फर्म करते हुए ही लॉज बनाने हैं. तो दैट ऑल्सो इंश्योर्स फेडरल सिस्टम. अगर आपके पास उनको ऑप्शन दे दिया जाए कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ो, आप अपने हिसाब से जो भी लॉज बनाना है बना सकते हो, यू कैन वॉयलेट, फिर वही हो जाएगा. देन फेडरल सिस्टम रहेगा नहीं, फिर या तो यूनिटरी चलेगी या दोनों फाइट करेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये आपको फेडरल फीचर में याद रखना है. देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है फेडरल प्रोविजंस can be amended only by joint action of center and state government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? मोस्ट ऑफ द लॉज जो सेंट्रल लिस्ट में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले बना सकती है. बट अगर कोई ऐसा लॉ है विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट द स्टेट्स, देन union government cannot bring the constitutional amendment, cannot enact those laws. Why? Because फेडरल सिस्टम है तो आपको उनका भी स्टेट्स का कॉन्करेंस लेना पड़ेगा. इसके लिए क्या होता है कि जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट एक्शन लेते हैं. जब कोई भी लॉ इस तरह का होता है जो फेडरल सिस्टम को या स्टेट्स को इम्पैक्ट करता है, तो वो लॉज स्टेट्स को सेंड किए जाते हैं. देन दे विल हैव टू पास अ रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूविंग द लॉ इन देयर स्टेट्स. फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करते हैं, उसको अब वो लॉ फिर इनैक्ट किया जाता है. तो ये चीज़ भी एक फेडरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है. दैट इंश्योर्स द फेडरल सिस्टम इज देयर इन द कंट्री. नाउ नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. It protects, what does it do? Independence of judiciary. It protects the supremacy of the constitution and settles disputes between the two. तो अगर जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो तो फिर यूनिटरी फीचर ही हो जाएगा, या फिर कोई फीचर ही नहीं रहेगा फ्रैंकली. सो देयर विल बी chaos, there will not be any structure functioning, proper functioning of the governance. So independent judiciary क्या करती है? वो इंश्योर करती है भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्रिंज करता है तो इट रिमाइंड्स देम दैट यू आर इन्फ्रिंजिंग द राइट ऑफ द स्टेट्स एंड द वाइस वर्सा. So it ensures the federal system remains intact and it is strengthened. It's not weakened by any side. Alright. The next is bicameralism. Bicameralism में क्या होता है? It is simple. It is bicameralism क्या बोलते हैं? जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टुगेदर को bicameralism बोलते हैं. मतलब दो हाउसेज होती हैं, ओनली वन हाउस नहीं होता है. तो इंडिया हैज द सिस्टम ऑफ bicameralism एट द यूनियन. क्यों? क्योंकि एक में तो लोकसभा जो होती है हमारी, द लोअर हाउस, वहाँ पे पीपल गेट सेलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस एंड दे कम. एंड द अपर हाउस क्या होती है? अपर हाउस रिप्रेजेंट स्टेट्स. तो दैट क्लियरली मतलब आप स्टेट्स का सुना जा रहा है, उनको राइट दिया गया है दैट यू कम एंड सिट हियर इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट योरसेल्फ एंड टेक पार्ट इन मेकिंग लॉज एट द यूनियन लेवल. सो तो बाईकैमरलिज्म ऑल्सो इट दिस, अगर आपको स्टेट्स को सीट दी जा रही है, प्लेस दिया जा रहा है इन द यूनियन गवर्नमेंट, दैट क्लियरली स्टेट्स दैट देयर इज अ फेडरल सिस्टम है वो. ऑलराइट. सो तो राज्यसभा क्या करता है? राज्यसभा मेंटेन्स फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर. अगर कोई ऐसी लॉ है जो अगेंस्ट, मतलब अनड्यू, अननेसेसरी, जो स्टेट्स के अगेंस्ट है, देन राज्यसभा विल नॉट पास इट, विल नॉट लेट इट थ्रू. तो वो ऐसे कानून जो फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाई करते हैं, वॉयलेट करते हैं, वो राज्यसभा में डिफीट हो जाते हैं. Rajya tries to defeat it so that the federal system cannot be tampered with. So this is the bicameralism.
सो वी हैव सीन द फेडरल फीचर्स में हमने देख लिए ड्यूअल पॉलिटी होती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, एंड बाइकैमरलिज्म. नाउ लेट अस सी if these are all the federal features of the Indian constitution और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सो व्हाट आर द यूनिटरी फीचर्स. अब हमें लग रहा है सारा तो फिर फेडरल सिस्टम ही है, यूनिटरी क्या होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो कुछ एक्स्ट्रा पावर नहीं है. सो बट इट इज़ नॉट ट्रू. वी आर एज इट हैज़ बीन राइटली सेड, वी आर फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस. तो थोड़ा सा बायसनेस है टुवर्ड्स द सेंटर फॉर राइट रीजंस. So now let us see what are the unitary features of the constitution. The first is strong center. Strong center कैसे, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले जब फेडरल फीचर्स आई वाज एक्सप्लेनिंग, आई वाज सेइंग इक्वल है और उनको भी वही पावर दी गई, nobody can interfere in each others. But now we have to see this strong center is strong. How? Why? Because large union list, जो सेंटर को पावर दी गई है, टॉपिक्स दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं टू मेक लॉज, दे आर लार्ज एंड ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर कॉन्करेंट लिस्ट. जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसपे दोनों सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज, उसमें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन if the center makes law on the concurrent subject, then the central laws will prevail over the laws made by the states. ये है. और थर्ड है रेसिड्यू पावर्स. अब इसके अलावा बहुत सारी जो सब्जेक्ट्स हैं at that point of time which was not mentioned in the constitution, क्योंकि तब वो चीज़ें they were not in the picture, वो फ्यूचर में थी. लाइक AI हो गया, अभी स्पेस मिशंस हैं, वो स्पेस में कंट्रोल कौन करेगा, एलियन इन्वेजन हो गया, कुछ भी वेरी द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो उस पर कौन लॉ बनाएगा, ये क्लियर होना चाहिए. तो क्या हुआ, रेजिड्यूरी पावर, मतलब जो न्यू लॉज, न्यू टॉपिक्स, न्यू सब्जेक्ट्स विल कीप कमिंग इन, उस पर लॉ बनाने का जो राइट दिया गया है वो दिया गया है सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो वो एक रेजिड्यू पावर जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है. दैट इज व्हाई द सेंटर बिकम स्ट्रांग. It does not have limit on the subjects on which it can make laws. In a way we can say that. Now the destructible states, what does that mean? Unilateral change of the area, boundary and names. तो स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल. अब स्टेट्स तो थोड़ी कह सकता है नहीं हम तो स्टेट हैं, वी कैन नॉट बी चेंज, वी कैन नॉट बी दिस एंड दैट. नो, यूनियन गवर्नमेंट वो चाहे तो यूनिलेटरली विदाउट कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट इट कैन चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, it can change the boundaries of the state, it can change the area of the state. All right, so ये भी एक unitary feature है. The single constitution also clearly states express itself as a unitary feature of the constitution, because स्टेट्स को कोई राइट नहीं है, उनका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना तो उनको बनाने का राइट है. जो सेंट्रल पे अब एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है वही सबके लिए है. नाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो शोज द यूनिटरी फीचर्स. जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चेंज इट, can amend it, and it is flexible so that it can accommodate with the changing times and needs of the changing times and need जो भी required होगा to accommodate in the constitution can be accommodated. Now no equality of the state representation. ये कहाँ पे इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है राज्यसभा की. तो ये बोल रहा है राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन में कोई इक्वालिटी नहीं है. लाइक किसी एक स्टेट से एक मेंबर है, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दे हैव ओनली वन मेंबर इन द राज्यसभा, एंड सम बिगर स्टेट्स लाइक यूपी दे हैव मोर मेंबर्स इन द राज्यसभा. तो अगर हम बोलते हैं सारे स्टेट्स इक्वल हैं, अगर इफ ऑल द स्टेट्स आर इक्वल, देन एवरी स्टेट लाइक फॉर एग्जाम्पल सिक्किम से भी 2 मेंबर हो जाए, यूपी से भी 2 मेंबर हो, सब जगह से 2-2, हर स्टेट के 2-2 मेंबर होने चाहिए राज्यसभा में. किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्यों दी गई है?
बट ऐसा नहीं है। तो सम स्टेट्स हैज़, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि इक्वालिटी अगर वहाँ नहीं है, फेडरल सिस्टम है बट इक्वालिटी नहीं है, तो सुप्रीमेसी फिर इनडायरेक्टली किसकी हो गई, यूनियन की हो गई ना। अदरवाइज क्योंकि जो अगर आपस में जो आ रहे हैं वो इक्वल है, तो कहीं ना कहीं उनकी सुप्रीमेसी भी दिखती है। बट नो, हियर द सेंटर इज सुप्रीम। सो आप में कोई एक आ रहा है, दो आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली द पावर होल्डर इज द यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज द यूनिटरी फीचर. Now emergency provisions. So emergency provisions में क्या है, converts federal into unitary without formal amendment of the constitution. emergency में तो यही होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन के पास पूरी पावर होती है कि ना बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फेडरल स्ट्रक्चर को यूनियन में कन्वर्ट, यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं. हाउ दे कैन डिसॉल्व दिस, दे कैन सस्पेंड द असेंबली एंड प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर. The next is single citizenship. No need to explain. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है. नो मैटर आप विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू गो, कौन से विलेज में चले जाते हैं, इंडिया के कौन से शहर में चले जाते हैं, विच स्टेट यू गो, यू आर एन इंडियन सिटीजन. ऑलराइट, तो ये दिखाता है कि आपके पास यूनिटरी, दिस इज ऑल्सो क्लियरली स्टेट्स यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली से हैं और आप मुंबई में जा रहे हैं तो आपको बोलेगा ये दिल्ली का सिटीजन एंड इंडियन सिटीजन है. नो, एंड वाइस वर्सा. सो सिंगल सिटीजनशिप ऑल्सो अ फीचर ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स टू एनफोर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज. ये भी तो है ना कि जुडिशरी जो डिफरेंट लेवल पे है वो इंटीग्रेटेड है. ऐसा नहीं है कि जो स्टेट्स का स्टेट में हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद वहाँ पे डिसीजन एंड हो जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाता है. नो, तो डिफरेंट लेवल पे जो अपील्स के लेवल हैं, हर स्टेट के हाई कोर्ट से अपील जो जाती है फर्दर वो जाती है सुप्रीम कोर्ट पे. और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर भी, तो जो प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर है उसकी, वो भी तो सेंटर का है ना, यूनियन का है. सो ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, दिस ऑल्सो शोज दैट वी हैव अ unitary feature in our constitution, also has unitary feature for it is biased towards the center. Then AIS, what is AIS? All India Services. So all India Services जो होती है उस पर सेंटर possess ultimate control over them. ultimate control कैसे होता है? सेंटर रिक्रूट करती है, एडवर्टाइज करती है, रिक्रूटमेंट का रिक्रूट करती है, टेस्ट लेती है और उनको ट्रेनिंग देती है और उनको अलॉट देती, सर्विसेज अलॉट करती है. उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता ऑल इंडिया सर्विसेज में. दे जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट द वॉट एवर स्टेट दे आर सेंट, दे देन वर्क फॉर दो स्टेट्स. बट स्टेट्स नहीं बोल सकता हम रिक्रूट करेंगे या हम इनको अकॉर्डिंगली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हमें ये बंदा यहाँ भेजना है, ऐसा नहीं होता है. सो ऑल इंडिया सर्विसेज पे टोटल कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. दैट इज ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, बट अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ CAG डन बाय प्रेसिडेंट विदाउट कंसल्टिंग स्टेट्स. तो एक इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है. जो CAG है वो स्टेट्स का भी तो अकाउंट्स को ऑडिट करता है. ऐसा थोड़ी है कि स्टेट्स ने अपना अलग सा CAG बना रखा है, अपॉइंट कर रखा है. नो, सो ऑल्सो जो रिमूवल होता है वो राइट जो होता है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल का राइट क्या होता है, वो प्रेसिडेंट का होता है और उसमें उसको स्टेट से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. तो थोड़ा सा यूनिटरी बायस हो गया ना, ये थोड़ा सा नहीं, काफ़ी यूनिटरी बायस हो गया. सो इट हैज़ यूनिटरी फीचर. द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड इलेक्टेड मशीनरी. इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, दिस ऑल्सो क्लियरली स्टेट, जब भी असेंबली के चुनाव होते हैं तो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है ना. इलेक्शन कमीशन सिटिंग इन द सेंटर. तो स्टेट का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, वो तो पंचायत करवाता है. तो दिस ऑल्सो शोज दैट द इंटीग्रेटेड इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन मशीनरी है, दैट इज ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर बिकॉज इट स्ट्रेंथन और इट इज बायस टुवर्ड्स द सेंटर. नाउ वीटो पावर ओवर स्टेट बिल्स. स्टेट बिल्स में वीटो पावर जो होती है वो तो गवर्नर्स की होती है ना. प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास भी होती है.
तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा दिस शोज यूनिटरी बायस. दिस इज हियर यूनिटरी बायस मीन्स समवेयर एट सर्टेन states or in certain circumstances the states are unequal to the center. Now governors appointment, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी जो है वो भी एक यूनिटरी फीचर है, बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट. व्हाट डज दिस मीन, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट? जब स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बनाने होते हैं और स्टेट्स को चाहिए कि सेंटर मेक्स द लॉ, फिर राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है आस्किंग सेंटर टू मेक द laws on certain state subjects. So this also shows a unitary feature, बिकॉज कभी ऐसा थोड़ी होता है कि यूनियन गवर्नमेंट कोई रेजोल्यूशन पास करे और स्टेट को बोलो ये हमारा सब्जेक्ट है, प्लीज़ यू मेक अ लॉ. इट डजंट हैपन अदरवाइज. सो ये एक यूनिटरी फीचर को बताता है, वेयर राज्यसभा passes a resolution for the union government to make laws on it. So this was all for features federal system of the Constitution of India. I hope you understood it properly, and you will be able to remember. You can make notes like this, you can answer your structure like this. So this is all for today's video. See you in the next video. Bye bye. Love you all.